Good morning, friends. So today we are here for our third class of Indian Contract Act, and as discussed in our previous classes, I hope everything is very much clear to all of you. And we've discussed the basics of the contracts, the types of contracts, agreement, offer, promise. Now today what we are going to discuss is different kinds of offer, about more detailed technicalities of offer and acceptance, how the offer is communicated, how acceptance is communicated, and how can offer and acceptance be revoked. About all these technicalities we are going to discuss it today. Okay, so first of all we'll start with different kinds of offer. We've left our previous class with the kinds of offer topic and we'll be continuing today with this topic again. Okay, so when we talk about kinds of offer, it says that kinds of offer is made up of two parts: how it is made and to whom it is made. First, when we talk about how an offer is made, it is divided into two parts: express offer and implied offer. And when we talk about to whom the offer is made, it is divided into two parts: general offer and specific offer. Okay, now we'll start with our concepts of what actually these offers are. What is this general offer? What is this specific offer? Express offer, implied offer? We are going to discuss about these in detailed manner. First of all, we'll talk about a general offer. See, what does general word means? If we talk about general means something that is not restricted to a particular thing and it can be viewed or it can be accessed by any number of people, is known as general. When we talk about a general offer here, offer means something that we are willing to give to the other person is an offer. If we want any person's acceptance in that case we make an offer to a person. Here we are talking about general offer means an offer which is not made to a particular person or a particular category of people, but in general to anyone, or public, or it means that anyone can have an access or can give an acceptance to the offer that is made by me is a general offer. Is it clear? So again I'm repeating is, what is a general offer? Any offer which is made to public whose acceptance can be given by anyone is known as a general offer. Okay, let's see what the law says. It is an offer made to public at large and hence anyone can accept and do the desired act, just as we've discussed earlier. Here is a case law, a very famous case law given as Carroll versus Carbolic Smoke Ball Company. It's a very interesting case law. Let's have a look at this case law. Okay, it says that Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of €100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Company. Now here the company has given an offer to anyone. See, the word here is they advertised in several newspapers. When a particular thing is advertised in a newspaper, that means anybody reading that newspaper can have an access to it. Anybody who generally reads that particular subject matter can respond to it, can give an acceptance to the offer that is made by the party. So here in this case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers. Several newspaper means they have not limited it to a particular person, not to particular group of category of people, but in general to all the people, that they would give €100 to any person who contracted influenza. Okay, after consuming the smoke balls that were produced by their company. Accordingly, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls according to directions given by the company and even then suffered from influenza. Means company openly claimed that कि smoke balls use करने के बाद अगर किसी को भी influenza हो जाता है तो वो उसे €100 का reward देंगे. But Mrs. Carroll here consumed the smoke balls and contracted influenza. So in this case, there was no specific offer made between the company and Mrs. Carroll. Mrs. Carroll belonged to the general public and she accepted the offer that was given by the Carbolic Smoke Ball Company. And after accepting the offer, she claimed
that she contracted influenza and now the company is liable to give her a reward of €100 as was claimed by the company in the newspaper. So here this makes us clear that there was no specific contract between the company and Mrs. Carroll. Mrs. Carroll, being the general public, accepted the offer or the claim that was made by Carbolic Small Ball Company and contracted influenza. Now she is liable. Now she is eligible for claim for the reward of €100. I hope it is clear what is a general offer. Okay, they have given one more case law here, that is Lalman Shukla versus Gauri Datta. Okay, let's discuss that also. It says that Gauri Datta sent his servant Lalman to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to certain reward. Now again here the word says is anybody. What is the word used here is anybody. तो कोई भी बंदा जो उसके नेफ्यू को ट्रेस करेगा उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा किसकी तरफ से? गौरी दत्ता के तरफ से. Now L traced the boy in ignorance of this announcement. L was asked to find the nephew, but he did not knew that Gauri Datta has announced a certain reward that he would be giving in case his nephew is found by anybody. Now L, who went on a search for the boy, found it. He found it actually, and subsequently when he came to know about the reward, he claimed it. Do you really think he is eligible for the claim? I don't think so, because he was not knowing about the offer. He was ignorant of the offer and he was just following the guidelines that was given by his master to find out his nephew. Hence, he was not entitled to any reward as he did not know about the offer. So we have learned two important things about this. First of all, a general offer is an offer which is made to general public, not restricted to a particular class of people. Then, in case an offer is not known to particular people and if they found out or if they give an acceptance to any particular thing without knowing about the offer, in that case they are not entitled to any reward because they were not knowing about the offer. Very clear. I hope it is clear to everybody. Okay. Now we come to our next type of offer, that is a special offer, or you can say as a specific offer. When we talked about general says anything that is applicable to any class of people. Now we talk about specific offer or special offer, and it says that any offer which is made only to a particular people, only to specific people, and it is accepted by same category of people, that is known as a specific or special offer. Okay, if I make an offer to Mr. X and instead of Mr. X, Mr. Y accepts my offer, that cannot be an offer because I have not made any offer to Mr. Y particularly. I have made offer to Mr. X and I want Mr. X to accept my offer and not Mr. Y. In that case, if Mr. Y accepts my offer, that will not be an offer by my end. I will not be entitled to give any reward to Mr. Y here. Let's see. When the offer is made to specific or as certain मतलब मुझे पहले से पता है कि मैं इन्हीं को दे रही हूँ, इनके अलावा मैं किसी को नहीं दे रही हूँ. तो when the offer is made to specific or as certain person, it is known as specific offer, and it can be accepted only by that specified person. See, it says here clearly that it can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. Okay. See, there quotes an example. It says that A offers to sell his car to B at certain cost. ये specific offer है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें person का नाम पता है, specific person का नाम पता है जिसको Mr. A क्या कर रहे हैं यहाँ पे offer दे रहे हैं certain cost पे. तो this is a specific offer. I hope it is clear. Okay. So we have discussed two types of offer, one is general and one is specific. Now we are discussing with the next type of offer, that is a cross offer. Cross means something that goes opposite. That means मैं offer कुछ और दे रही हूँ और उनकी तरफ से acceptance किसी और चीज़ का आ रहा है, ठीक है? मैं offer किसी और चीज़ का दे रही हूँ, उनकी तरफ से acceptance किसी और चीज़ का आ रहा है, या हो सकता है कि वो मुझे कुछ और offer दे रहे हों. That is known as cross offer, ठीक है? See what says. When two parties exchange identical offers in ignorance
टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मुझे सामने वाला क्या ऑफर करने वाला है, या सामने वाले को पर्सन नहीं पता था कि मैं उसको क्या ऑफर करने वाली हूँ। तो मतलब इफ आई से वी हैव टू पार्टीज A एंड B, A proposes to offer something to B and at the same time B के दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे क्या करना है, A को ऑफर करना है। मतलब A भी B को ऑफर करना चाहते हैं एंड B भी A को ऑफर करना चाहते हैं, नॉट नोइंग कि भैया मुझे सामने से भी ऑफर मिलने वाला है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, क्रॉस ऑफर। There is no binding contract in such a case because offer जो है यहाँ पे किसकी तरफ से बनाया गया है, made by a person, cannot be constituted as acceptance of another's offer। हम नहीं मान सकते कि सामने वाले का जो ऑफर है वो हमने क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है, बिकॉज इन दैट केस हमें नहीं पता था कि हमें भी सामने से ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, let's see what's the example. It says that if A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakh and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakh rupees. A ने B से कहा कि मैं अपनी 2 लाख की कार आपको देना चाहता हूँ। उसी टाइम पे ही B ने भी क्या कर दिया, बोल दिया, मतलब उसको पता नहीं था कि A उसको ऑफर करने वाला है, लेकिन B ने इग्नोरेंटली A से बोला कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, वो भी 2 लाख रुपए में। वाह, देखिए कितना कोइंसिडेंस है। A भी 2 लाख की बेचना चाहता था, B भी 2 लाख की कार जो खरीदना चाहता था, और सब्जेक्ट मैटर क्या है, बिल्कुल सेम है। सब्जेक्ट मैटर इज A's कार। तो कह रहा है इट इज ओनली अ क्रॉस ऑफर। ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर। एंड व्हेन टू पार्टीज मेक ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। तो इनके बीच में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ ना B को A के ऑफर के बारे में पता था, ना A को B के ऑफर के बारे में पता था। इसलिए ऐसे टाइप के ऑफर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के ऑफर को हम लोग, क्रॉस ऑफर बोलते हैं। ओके, सॉरी। Now we come to a different offer, that is a counter offer. What we call is as counter offer. Okay. Now it says that counter offer मतलब मैं कोई चीज़ 100 रुपए की बेचना चाहती हूँ and the other party want to say that नहीं मैं 100 की नहीं खरीदूंगी, मैं उसे 85 की लेना चाहूँगी। मतलब मैं एक ऑफर दे रही हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ आपको 100 में बेचना चाहती हूँ एंड एट द सेम टाइम अदर पार्टी सेज कि नहीं मैं उसको 100 की नहीं, मैं आपसे 85 की लेना चाहती हूँ। दैट मीन्स एक डिफरेंट ऑफर है जो मुझे सामने पार्टी से मिल रहा है। तो व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड द अदर पार्टी मेक्स एन अनदर ऑफर, तो वो क्या हो जाता है, काउंटर ऑफर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, काउंटर ऑफर। मतलब वो आपके ऑफर को क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके ऑफर को क्या कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। ओके, सो when the offeree offers to a qualified acceptance of offer subject to modifications, modification हुआ, मैं 100 की बेचना चाह रही थी, उसने 85 का ऑफर दे दिया, तो मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ, subject to modifications and variations in the terms of original offer। यहाँ मेरा ओरिजिनल ऑफर कितने का था, 100 रुपये का था। मेरा ओरिजिनल ऑफर कितने का था, 100 का, और उसके बदले में जो मुझे काउंटर ऑफर मिला वो कितने का मिला, मुझे 85 का मिला। कितने का मिला मुझे काउंटर ऑफर, 85 का। He is said to have made a counter offer. Okay? काउंटर ऑफर जब भी दिया जाता है, इसका मतलब जो मेरा ओरिजिनल ऑफर है वो क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, बिकॉज उसने मेरी बात पे एक्सेप्टेंस नहीं दी है, मेरे 100 रुपए के कोटेशन पे उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। एंड फर्दर ही गेव मी अ न्यू ऑफर कि मैं आपकी चीज को 85 में लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे counter offer amounts to rejection of the original offer and it is also called conditional acceptance। उसने कंडीशन लगा दी ना, नहीं मैं 100 का नहीं, मैं 85 का लूंगा। तो here is a condition कि अगर सामने वाली पार्टी मुझे वो चीज़ 85 की देगा तभी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, elsewise I will not accept that particular thing। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, कंडीशनल एक्सेप्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ सी स्टैंडिंग ऑफर, कॉन्टिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ठीक है, तो एक ऑफर विच इज अलाउड टू ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको मुझे 1 या 2 या 3 दिन में ही उसका एक्सेप्टेंस देना है, बट एन ऑफर विच इज मेड ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफर कहते हैं, या फिर ओपन ऑफर कहते हैं। ठीक है, जनरली जो टेंडर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो हमारे ओपन ऑफर या उसको हम स्टैंडिंग ऑफर या हम कंटिन्यूइंग ऑफर के नाम से भी
जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्विक रिव्यू हो जाता है। हमने यहाँ पे 5 तरीके के ऑफर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा ऑफर पढ़ा? जनरल ऑफर। फिर हमने कौन सा ऑफर पढ़ा? स्पेसिफिक ऑफर, तो हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? स्पेशल ऑफर के नाम से भी जान सकते हैं। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा? क्रॉस ऑफर। देन हमने कौन सा पढ़ा? काउंटर ऑफर। एंड लास्ट हमने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? स्टैंडिंग ऑफर, या आप उसको ओपन ऑफर भी कह सकते हैं, या उसको आप कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक। स्पेसिफिक ऑफर इज ऑफर विच इज मेड टू स्पेसिफाइड पीपल, या इसको हम लोग असर्टेड पीपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस ऑफर का मतलब क्या था? जब ए बी को ऑफर करना चाहते थे और बी भी ए को ऑफर करना चाहते थे और दोनों लोग एक दूसरे के ऑफर के बारे में क्या थे? अननोन थे, तो ये हमारा क्रॉस ऑफर है। काउंटर ऑफर है, ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज जो वो 100 की देना चाहता हूँ, और बी ने उसके रिवर्ट में बोला नहीं मैं तो 85 की लेना चाहता हूँ। तो जब एक पार्टी दूसरे के ऑफर को हटा, दूसरे के ऑफर को क्या है? रिजेक्ट कर रही है और उसके बदले में अपना ऑफर कोट कर रही है, दैट इज नोन एज अ काउंटर ऑफर। क्लियर? एंड स्टैंडिंग ऑफर मीन्स कोई भी ऑफर जो एक पर्टिकुलर, जो एक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए क्या रहता है? ऑफर रहता है। जनरली क्या आ जाते हैं हमारे पास? टेंडर्स आ जाते हैं। तो ऐसे टाइप के ऑफर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग, ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक अच्छा टॉपिक जो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, कि अगर मुझे एक ऑफर को वैलिड बनाना है तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई नीड टू कीप इन माइंड। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ओके, सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि एक ऑफर ऐसा होना चाहिए विच इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑफर जो लॉ की नज़रों में सही है या जिसको हम लीगली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अ वैलिड ऑफर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहती, एक सिंपली एक सोशल तरीके से मैं कोई इन्विटेशन दे रही हूँ या कोई सोशल ऑफर दे रही हूँ, सोसाइटी के भले के लिए कर रही हूँ, अपना उसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, दैट इज नॉट अ लीगल रिलेशनशिप एंड हेंस इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। कह रहे ऑफर मस्ट बी सच as in law is capable of being accepted and giving rise to a legal relationship, giving rise to a legal relationship. ठीक है, if the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relationship, उसको हम valid offer नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इनकी नज़रों में भी अगर कोई social invitation है तो वो legal relation नहीं create करेगा and hence it will not be a valid offer. Okay, now we come to our next point. An offer must be certain, very important. Offer must be certain, definite and not vague. If I say I will give you some rice, यहाँ पे it's not a valid offer because यहाँ पे some rice, what do you mean by some rice? There you are not mention any quantity. तो अगर मैं सामने वाले पर्सन को ऑफर कर रही हूँ तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि एक्चुअली मैं उसे क्या ऑफर कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसको इतना बता दूँ कि मैं आपको राइस दूंगी, इससे काम नहीं चल जाएगा। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं आपको इतनी क्वांटिटी ऑफ राइस जो है वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ। नाउ एज अगेंस्ट माय फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपको 10 kgs ऑफ राइस देना चाहती हूँ तो वो मेरा सर्टेन ऑफर है, वो मेरा एक्सेप्टेबल ऑफर है, बिकॉज इन दैट केस आई हैव पर्टिकुलरली मेंशन्ड कि मैं आपको 10 kgs ऑफ राइस देना चाहती हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली स्टेटमेंट में आई सेड आई वांट टू गिव यू सम राइस व्हिच इज नॉट सर्टेन, व्हिच इज वेग, व्हिच इज वेग। वेग मतलब कि उसकी में क्लैरिटी नहीं है या हम उसको एक्चुअली समझ नहीं सकते हैं कि किस तरीके का ऑफर हमें मिला है। ठीक है, तो अगर हमें एक वैलिड ऑफर बनाना है तो वो ऑफर क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, उसमें क्लियर वर्ड्स में मेंशन होना चाहिए कि मैं एक्चुअली क्या चीज़ जो हूँ सामने वाली पार्टी को ऑफर करना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हम लंबा डिस्कशन कर सकते हैं इज इट मस्ट बी कमिंग
कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे बी को 10 kg ऑफ राइस सेल करना है, लेकिन ये बातें मिस्टर ए अपने मन में ही रख रहे हैं और बी को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये बातें ए अपने मन में ही रख रहे हैं और बी को इसके बारे में नहीं बताते हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं, क्या ये ऑफर हुआ ए की तरफ से बी को? बी को तो पता ही नहीं है कि ए जो है मुझे क्या कर रहा है, राइस ऑफर करना चाहता है। तो अगर मुझे एक वैलिड ऑफर बनाना है तो उसके लिए तो एक एसेंशियल पॉइंट है ना कि मैं अपने ऑफर को क्या कर सकूं, सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकूं। अगर मैं अपने ऑफर को सामने वाले पास कम्युनिकेट ही नहीं कर रही हूँ, सामने वाली पार्टी को मेरे ऑफर के बारे में पता ही नहीं है या उसे पता ही नहीं है कि मैं उसको फ्यूचर डेट में या प्रेजेंट टाइम पे कोई ऑफर देना चाहती हूँ, तो वो एक्सेप्ट भी कैसे करेगा भाई? एक्सेप्टेंस तो तब होगा ना जब उसको ऑफर के बारे में पता होगा। उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस क्या ही देगा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एन ऑफर इज मेड, इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बिकॉज अगर आप एक ऑफर बनाना चाहते हैं, उसको वैलिड रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऑफरी को उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अगर ऑफरी को पता ही नहीं है तो वो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देगा? एंड हाउ विल यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में तो आप एंटर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अपने मन की बात तो ऑफरी को बताई ही नहीं है भाई, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे अभी हम लोग पहला पढ़ के आए थे ना गौरी दत्ता और उसके सर्वेंट लालमन के बारे में। तो गौरी दत्ता ने क्या किया, लालमन को बोला कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के आओ। बाद में गौरी दत्ता ने उसका अनाउंसमेंट दे दिया कि भैया जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको सर्टेन रिवॉर्ड दूंगी। अब लालमन जो था वो उसको ढूंढ लाया, लेकिन लालमन को ऑफर के बारे में नहीं पता था। मतलब गौरी ने लालमन को उस ऑफर के बारे में नहीं बताया था। गौरी दत्त ने यहाँ पे लालमन को उस ऑफर के बारे में नहीं बताया था। सिंस लालमन was not aware of the offer that was made by Gauri Dutt, and now even if Lal Dutt finds out his nephew, in that case लालमन is not entitled to any reward. Reason being कि यहाँ पे लालमन को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। द ऑफरर दैट इज गौरी दत्त, उसने लालमन को उस ऑफर के बारे में बताया ही नहीं था। तो जब ऑफरर ने ही ऑफरी को नहीं बताया कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा और ऑफरी को पता भी नहीं है कि उससे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो इन दैट केस बाद में ढूंढने के बाद भी उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। सी, अगर मैं किसी को ऑफर प्रपोज कर रही हूँ और मैं उसकी कंसेंट ऑब्टेन करना चाहती हूँ, तभी तो मैं ऑफर कर रही हूँ। अगर मैं ऑफर इस इंटेंशन से करूँ कि मुझे सामने वाले की असेंट लेनी ही नहीं है या उसकी कंसेंट या उसकी अफर्मेशन मेरे लिए मायने ही नहीं रखती है, तो फिर ऑफर देने का फ़ायदा क्या हुआ? देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी ऑफर, देयर विल बी नॉट यूज ऑफ मेकिंग एनी ऑफर। सो अगर मुझे किसी पार्टी की कंसेंट लेनी है और ऑफर मैं उसी इंटेंशन से दे रही हूँ कि हाँ मुझे सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेनी है, तभी वो एक वैलिड ऑफर है, एल्सवाइज वो ऑफर नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गई ये चीज़? ओके। नेक्स्ट इज इट मे बी कंडीशनल। जो भी ऑफर आप दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, हो सकता है कि वो कंडीशनल हो सकता है कि आप उसमें ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रख दें जिसको ऑफरी को फुलफिल करने पड़े। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको पेमेंट करनी है, लेकिन ये पेमेंट आप मुझे RTGS, NEFT, IMPS इसी से ही करिएगा, आई डोंट वांट एनी पेमेंट इन कैश, और या आप मुझे पेटीएम से या गूगल पे इन सब से मत दीजिएगा या चेक से मत दीजिएगा। तो हेयर आई प्लेस्ड अ कंडीशन कि अगर आप मुझे ऑफर करें, अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे तो आप इसी तरीके से ही देंगे। ठीक है? या अगर मैं आपको ऑफर दे रही हूँ तो मैंने पॉइंट्स लिस्ट आउट कर दिए हैं आपकी नज़रों में कि मुझे यही चीज़ें एक्सेप्टेबल है, एल्सवाइज नॉट। ठीक है? सी, देखो इसमें लिखा भी है ऑफरर में आस्क फॉर द पेमेंट बाय RTGS, NEFT एक्सेट्रा and the offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. अगर मैं अपने ऑफरी को 4 कंडीशंस दे रही हूँ, उस 4 में से वो सिर्फ 3 फुलफिल कर रहा है, चौथी फुलफिल नहीं कर रहा है, तब भी मैं एक वैलिड ऑफर नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। रीज़न बीइंग मेरी तरफ से कंडीशंस उसे कितनी ऑफर करी गई थी? 4। अगर 4 वो फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर वैलिड ऑफर एक्चुअली में उसे मानना है या उसको एक्चुअली में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है,
इट मस्ट बी एसेंशियल कि 1 2 3 4 मैंने जितने भी उसको कंडीशंस लिस्ट आउट करी हैं अपना ऑफर देते टाइम, मेरा ऑफरी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करे। अगर मेरा ऑफर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं होगा एंड अल्टीमेटली नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैलिड ऑफर ज़रूरी है पहले, और वैलिड ऑफर कहता है कि भाई जितने भी कंडीशंस लिस्ट आउट किए गए हैं ऑफर में, ऑफरी के लिए वो सारी चीज़ें ऑफरी क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो। अगर ऑफरी उन सब सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो एक वैलिड ऑफर माना नहीं जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म compliance of which would amount to acceptance, ठीक है। कह रहे हैं कि आपके ऑफर में कोई भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, मतलब कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ऑफर पूरी तरीके से सर्टेन होना चाहिए, क्लियरली उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होने चाहिए, जो भी आप एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने ऑफरी से वो सब चीज़ें एक्चुअली में उसमें क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें उसमें मेंशन नहीं है, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो फिर किसी भी तरीके का वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे इनका एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, ए प्रपोजेस बी टू परचेज हिज एंड्रॉयड मोबाइल फॉर ₹5,000. If no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted his proposal. It would not result into a contract. ऐसा नहीं कि आप उसको बोल दो कि अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैं मान लूँगा कि वो आपने पूरा कर लिया है, ठीक है। देखो अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ एक वैलिड ऑफर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके ऑफर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं मान लूँगा कि वो आपका एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ऐसे तो अगर कोई पार्टी बिजी है फॉर एग्जाम्पल, या इग्नोरेंट है आपके ऑफर के बारे में अभी तक, या उसको टाइम नहीं मिला है, तो आप तो ज़बरदस्ती उसे बाइंड कर देंगे आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, वेयरएज दिस शुड नॉट बी डन। सो इट शुड बी कि आप ऑफर अगर सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं तो इट शुड बी फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप उसमें मेंशन करें कि आप मुझे इतने टाइम में ऑफर दीजिए, इतने टाइम अपनी एक्सेप्टेंस दीजिए, या आप कोई एक्ट परफॉर्म करिए। मतलब मियर साइलेंस जो है, पहली बात तो नहीं माना जाता है कि यार सामने वाली पार्टी ने आपकी चीज़ को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, देयर शुड बी सर्टेन कंडीशन, सर्टेन एक्ट दैट शुड बी परफॉर्म बाय द ऑफरी विच क्लियरली शोज द ऑफरर कि हाँ उनका ऑफर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है, उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑफर में आइदर बी अ जनरल ऑफर और अ स्पेसिफिक ऑफर, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू जनरल क्लास ऑफ पब्लिक नॉट रिस्ट्रिक्टिंग कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन ही हमें सिर्फ एक्सेप्टेंस दे सकता है, दैट इज अ जनरल ऑफर। बट व्हेन एन ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑफर, एंड वो वैलिड तभी माना जाएगा जब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है उसी ने ही हमें एक्सेप्टेंस दी है। जैसे अगर मिस्टर एक्स वाई को ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ एक्सेप्टेंस भी वाई टू एक्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स ने वाई को ऑफर किया है और एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, जेड दे रहा है, और जेड हमें एक्सेप्टेंस देगा तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो बहुत ही ईजी थे, बता रहे थे वैलिड ऑफर के, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसको बहुत ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। कह रहे ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अपना एक इंटेंशन कोट कर रही हूँ कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, दैट डज नॉट मीन्स कि मैं सामने वाली पार्टी को ऑफर दे रही हूँ। इफ़ आई से कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ अपनी ड्रेसेस जो है अपनी फ्रेंड को ऑफ़र करूँ या सर्टेन प्राइस पे उसको दूँ, तो अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को कम्युनिकेट नहीं किया। पहली बात तो ऑफ़र कंप्लीट ही तब होगा जब वो कम्युनिकेट हो जाएगा टू द ऑफरी। तो अभी मेरा सिर्फ इंटेंशन, मेरा सिर्फ सोचना, मेरा सिर्फ कॉन्शियस माइंड में आना कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, वो ऑफर नहीं है, ठीक है। तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंशन या इन्विटेशन ऑफ द ऑफर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आप एक होटल जाते हैं या आप कोई रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है जिसमें सब चीज़ें लिस्ट आउट होती हैं कि भाई आपको पाव भाजी इतने की मिलेगी, यूल गेट चाउमिन फॉर इतना, यूल गेट मंचूरियन फॉर इतना। तो दैट मेन्यू कार्ड, ठीक है, दैट मेन्यू कार्ड इज़ एन इन्विटेशन, that is an invitation to the offer that you are going to make
टू द होटल और टू द रेस्टोरेंट। क्लियर हो गई ये चीज़? तो दे आर इनवाइटिंग यू दैट यू शुड कम एंड मेक एन ऑफर। ठीक है, तो वो जो मेन्यू कार्ड है दैट इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर, वेयर एज उसमें से आप जो सिलेक्ट करके रेस्टोरेंट को देते हो, आई वॉन्ट टू टेक दिस, आई वॉन्ट टू बाय दिस फॉर इतना, आई वॉन्ट टू टेक दिस फॉर इतना, दैट इज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग टू द रेस्टोरेंट। आई होप इट इज क्लियर। एंड अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ थोड़ी सी बात बता देने से वो मेरा ऑफर नहीं हो जाएगा, या कोई कैजुअल इक्विटी या कोई प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफर मानी नहीं जाती हैं, ये सब ऑफर से अलग है। ठीक है, तो इफ़ आई से एन इंटेंशन, if I say an invitation to the offer, if I say a mere communication of the information या any casual equity, prospectus और advertisement, ये सब चीज़ें मेरे ऑफर से क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़? तो इन्विटेशन टू द ऑफर को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, लेट अस सी। इट सेज दैट पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक द ऑफर। जो आपको इन्वाइट कर रहा है वो आपको ऑफर नहीं दे रहा है, रादर वो आपको इनवाइट कर रहा है ताकि आप उसको ऑफर दें। समझ आई? वो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है ताकि आप उसे ऑफर दें आकर, वो ऑफर नहीं दे रहा है आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, आप उसको ऑफर दीजिए। ठीक है, हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनी पर्सन, कि हम चाहते हैं कि आप आएँ, आप हमारी शॉप में कंज्यूम करें, आप हमें ऑफर दें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन इज रेडी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब उसने इनवाइट किया, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, तभी तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, उससे पहले तो नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये होटल वाला एग्जाम्पल जो है आपको हमेशा याद रहेगा कि जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो रेस्टोरेंट और होटल वाला आपको ऑफर नहीं दे रहा है, he is inviting you so that you come, you see their menu card and you make an offer out of that कि आप actually क्या consume करना चाहते हो। एंड जब आप बताओगे कि मैं ये चीज़ें कंज्यूम करना चाहती हूँ, एंड दैट पर्सन, दैट मीन्स द होटल और द रेस्टोरेंट इज विलिंग टू गिव यू द सेम एट द प्राइस दैट वाज कोटेड इन द मेन्यू कार्ड, तो वो आपका क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। वट एवर इज अ मेन्यू कार्ड इज एंड जस्ट इज सिंपली जस्ट एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर। ओके, क्लियर है ये चीज़? देखो एक एग्जाम्पल इन्होंने भी कोट किया हुआ है, लेट्स सी। It says that advertisement for the sale of good by auction is an invitation of the offer। हमने कहा कि कोई ऑक्शन है, आपको आना है, ठीक है, आपको अपनी बिडिंग करनी है, तो मैं आपको ऑफर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ ताकि आप आइए, आप ऑक्शन पे आइए, आप पर्टिकुलर चीज़ को देखिए और उसको देख के आप ऑफर करिए, मतलब आप बिड करिए, आप कोट करिए कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कितने में खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इट मेरली इनवाइट्स ऑफर और बिड मेड एट द ऑक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? सेम चीज़ जो कंपनी के केस में होती है, दैट इज द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दैट इज इशूड बाय द कंपनी इज ओनली इन्विटेशन टू मेक द ऑफर। ठीक है, यहाँ जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये क्या है, ये पब्लिक को इन्वाइट कर रहा है, आप आइए और आप बताइए कि आप पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कितने में लेना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनविटेशन टू द ऑफर मीन्स, इनविटेशन टू द ऑफर कह रहा है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, आप ऑफर करिए कि आप वो चीज़ हमारे यहाँ से कितने में लेना चाहते हैं, हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। एक तो आपका ऑक्शन, ठीक है, और एक आपका नंबर 1 इज ऑक्शन एंड नंबर 2 इज योर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, जो आपको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं सो दैट यू कम एंड मेक एन ऑफर ऑफ पर्टिकुलर थिंग एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट। अगर मैं अभी जैसे मैंने बोला आई एम विलिंग टू गिव माई फ्रेंड माई 4 ऑफ द ड्रेसेस, तो वो क्या है, सिर्फ मेरा एक इंटेंशन है कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, वेयर एज आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड टू माई फ्रेंड, वेयर एज आई हैव नॉट मेड एन ऑफर दैट इज वेरी सर्टेन। सर्टेन कहाँ है, मैंने कहा आई वॉन्ट टू गिव सम ड्रेसेस टू माई फ्रेंड। ठीक है, सम में पहली बात तो कोई मेंशन नहीं है क्वांटिटी के, मैं कितनी देना चाहती हूँ, एंड एट अ प्राइस, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन भी तो इन्वॉल्व होनी चाहिए, कंसिडरेशन तो यहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं। मैं बोलूँ कि मैं वो चीज़ किसी को देना चाहती हूँ, ना चीज़ की क्वांटिटी मेंशन है, ना उसका प्राइस मेंशन है, ना ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है, तो भैया वो कैसे कंप्लीट हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर ऑफर क्रिएट नहीं करता है।
ठीक है। एंड ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दे रहे हैं तो वो एक ऑफर नहीं है, ऑफर इज समथिंग डिफरेंट टू दैट। ओके, हियर इज द केस, वेरी इजी केस दैट्स गिवन ऑफ हार्वे वर्सेस फैसी। ठीक है, यहाँ पे केस हुआ है, ठीक। इन दिस केस द प्रिवी काउंसिल succinctly explain the distinction between an offer and invitation to the offer. In this case, the plaintiff through a telegram asked the defendant two questions. जो plaintiff है, plaintiff कौन होता है? जो complaint file करता है। यहाँ पे plaintiff कौन होता है? One who files complaint। ठीक है, जो complaint file करता है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? plaintiff कहते हैं। तो यहाँ पे plaintiff ने डिफेंडेंट से दो क्वेश्चंस पूछे। पहली बात तो विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन एंड द टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। ठीक है, उसने दो क्वेश्चंस पूछे उससे कि क्या आप मुझे बम्पर हॉल पेन बेचेंगे और टेलीग्राफ का लोएस्ट कैश प्राइस क्या होगा। ये दो क्वेश्चंस हैं जो मेरे प्लेंटिफ ने किससे पूछे हैं? डिफेंडेंट से पूछे हैं। ठीक है, तो डिफेंडेंट ने क्या जवाब दिया? कह रहा कि लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन, ठीक है, लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज €900। Plaintiff sent another telegram stating that we agree to buy the bumper hall pen at €900. However, defendant refused to sell the property at the price. उसने मना कर दिया। ठीक है, देखो हुआ क्या। सबसे पहली बात, प्लेंटिफ ने उससे क्वेश्चंस पूछे कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचेंगे और टेलीग्राफ का लोएस्ट कैश प्राइस क्या है। उसने कोट कर दिया कि टेलीग्राफ का जो हमारे बम्पर हॉल है उसका जो लोएस्ट प्राइस है वो €900 है और प्लेंटिफ ने आगे से बोला कि ठीक है हम उसे खरीदेंगे €900 का। ठीक है, बाद में डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है इस प्राइस पे आपको ऑफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने उससे लोएस्ट प्राइस पूछा था, उसने ये नहीं पूछा था कि आप किस प्राइस पे हमें सेल करेंगे। हिज क्वेश्चन वाज कि आपके यहाँ का लोएस्ट प्राइस क्या है और डिफेंडेंट ने लोएस्ट प्राइस कोट कर दिया कि लोएस्ट प्राइस ये है। डिफेंडेंट ने कहीं ये क्लियरली नहीं बोला कि हम आपको इतने का देना चाहते हैं। क्लियर है? तो देखो, द प्लेंटिफ sued the defendant contending that they had made an offer to sell the property at €900 and therefore they are bound by the offer। प्लेंटिफ कह रहा है कि नहीं, आपने €900 कोट किया था, अब आपको मुझे €900 का वो पर्टिकुलर चीज़ देनी पड़ेगी। However, Privy Council did not agree with the plaintiff, क्योंकि यहाँ पे कौन गलत है? प्लेंटिफ गलत है। प्लेंटिफ का क्वेश्चन क्या था कि आप मुझे लोएस्ट प्राइस बता दीजिए। डिफेंडेंट ने लोएस्ट प्राइस बता दिया। डिफेंडेंट ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज़ उतने प्राइस में ऑफर कर रहा हूँ। उससे जो क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसने उसका आंसर दे दिया। जो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन। You made a question to that particular person, he made an answer to that, but he did not say कि हाँ मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज़ उतने में ऑफर कर रहा हूँ। आपने लोएस्ट प्राइस पूछा, उसने लोएस्ट प्राइस बता दिया। कहीं पर भी डिफेंडेंट ने ये नहीं बोला कि मैं आपको वो पर्टिकुलर चीज़ इतने में ऑफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गलत कौन है? यहाँ पे प्लेंटिफ गलत है, बिकॉज प्लेंटिफ का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है। प्लेंटिफ ने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर उसे मिल गया। दैट डज नॉट मीन्स कि प्लेंटिफ ने ऑफर किया जिसको हमारे डिफेंडेंट ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था। दैट वाज मियर क्वेश्चन एंड आंसर दैट वाज प्लेड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। आई होप इट इज क्लियर। द अबव केस लॉ इज वेरी मच क्लियर, हार्वे वर्सेस फैरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हार्वे वर्सेस फैसी में हुआ था, वैसे सेम केस लॉ जो है वो किसके बीच में हुआ है? मैकफर्सन वर्सेस अपाना। ठीक है, it says that where the owner of the property had said that he would not accept less than €6,000। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने क्लियरली बोल दिया कि मैं €6,000 से कम तो एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं। दिस स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेटेड ओनली एन इन्विटेशन टू द ऑफर, कि आप आइए, आप बताइए कि आप वो चीज़ जो है पर्टिकुलरली कितने प्राइस में मुझे ऑफर करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बस इतना कोट करा कि मैं €6,000 तो नहीं लूँगा, अब आप आइए और आप बताइए कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ कितने की लेना चाहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जितनी भी बातें थी ऊपर ऑफर से रिलेटेड वो हमें क्लियर हो गई कि अगर किसी पार्टी का सिर्फ इंटेंशन है या कोई अनाउंसमेंट है या क्वेश्चन आंसर चल रहा है या इन्विटेशन टू द ऑफर है, ये सब चीज़ें जो हैं मेरी ऑफर नहीं बनाती हैं। दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, बिकॉज फॉर अ वैलिड ऑफर
वैलिड ऑफर के लिए ऊपर की कही गई जितनी भी बातें थी, दैट इज इट मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी डेफिनेट, इट मस्ट नॉट बी वेग, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ ऑफर मानी जाएगी, एल्सवाइज वो चीज़ आपकी ऑफर मानी नहीं जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ में एक सिमिलर केस दिया है, he said that similarly when goods are sold through auction, जब ऑक्शन के थ्रू गुड्स सोल्ड किए जाते हैं तो ऑक्शनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ तभी हेल्प करता है जब एक्चुअली जो प्राइस आपने कोट किया है और जो प्राइस वो दिमाग में सोच के बैठा है, दैट इज बोथ मैचिंग, दैट इज बोथ इक्वल, एंड देन वो बाय द ड्रॉप ऑफ द हैमर डिसाइड करता है कि हाँ देयर इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वी टू, ठीक है। तो auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale. The person the person who have come to the auction may have the intention to purchase. वो खरीदने ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्शन है वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के तरीके से है कि आप आइए, आप ऑफर करिए, ठीक है। वो पहले से आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट मेंटर नहीं है, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और आप जो है फर्दर मुझे ऑफर करिए। क्लियर है ये चीज? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? ओके, नाउ वी कम टू अ डिफरेंट टॉपिक। इट सेज दैट ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जैसे भी हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं कि ऑफर जनरल ऑफर है, ऑफर स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है। तो जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक है, एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, इतने तरीके के हम लोग ने ऑफर्स जो है ऊपर पढ़े थे, टू हुम इट इज मेड के हिसाब से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो आपका इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब ही क्या होता है? कह रहे हैं कोई भी चीज़ जो क्लियरली बता दी गई है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल जिसमें कोई भी दो राहें नहीं है, जो साफ साफ शब्दों में कह दी गई है या किसी कंडक्ट से साफ साफ विजिबल है, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। तो कह रहे हैं कोई भी ऑफर दैट कैन बी मेड आइदर बाय द वर्ड्स और बाय द कंडक्ट। यहाँ पे क्लियरली है आइदर बाय द वर्ड्स और बाय द कंडक्ट, उसे हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस ऑफर कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? देखो अभी जैसे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स में सिग्नल्स पे जब भी हम लोग रुकते हैं तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो आसपास की जो लेडीज़ होती हैं वो लोग आपके कार के रुकते ही क्या करती हैं? आपकी कार को वाइप ऑफ करना स्टार्ट कर देती है। दैट मीन्स कि आपके उनके बीच में कोई ऑफर नहीं था, दैट वाज सिंपली दैट द अदर पार्टी इज विलिंग, दैट द अदर पार्टी इज जस्ट विलिंग कि वो क्या करे कि आपके ऑफर को, मतलब आप उसको, वो कोई काम कर रही है और आप उसको क्या कर रहे हैं? फर्दर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो हेयर इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, हेयर इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर। ओके, आई होप ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। नाउ we'll go with our 10th point, that is a statement of price is not an offer, which we'll be discussing in our next class. Okay, so I hope all these concepts are clear to you and